अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है। और एंटी माइक्रोबियल्स ये जो लेक्चर है ये मैं बना रहा हूँ इस बुक से, विच इज़ अबाउट टॉप 200 ड्रग्स, एंड दिस बुक इज़ रिटन बाय माइकल डीन फॉर्मडी। अब ये जो टॉप 200 ड्रग्स हैं मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स में या दुनिया में कहीं भी ये टॉप 200 ड्रग्स ही हम यूज़ करते हैं मोस्टली, जो डेली प्रैक्टिस के अंदर, क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। और ये टॉप 200 ड्रग्स ही यूजुअली इनके बारे में पूछा जाता है जो भी आपके मेडिकल एग्ज़ाम्स हैं, आइदर वो फॉर्म डी का है या एमबीबीएस के लिए है, डेंटिस्ट, या कोई भी अगर आप फॉरेन एग्ज़ाम दे रहे हैं लाइक नैप्लेक्स और एफ पी जी ई, और इसके अलावा यू एस एम एल ई, कोई भी आप एग्ज़ाम, या नर्सिंग। सो most of the questions about pharmacology, they are revolve around these 200 drugs. So you must have knowledge on your fingertips, or you must know the major highlights or major points about these top 200 drugs, ताकि कोई भी एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी क्लिनिकल केस को आप स्टडी कर रहे हैं तो फ़ौरन आपका ब्रेन वर्क करना चाहिए, और आपको इन टॉप 200 ड्रग्स की जो भी XYZ के ड्रग है हम उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके माइंड में फ़ौरन आनी चाहिए, ताकि आप जो क्लिनिकल केस है उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएँ, या जो एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएँ। So first class of drugs which we're going to discuss today is about antimicrobials. Now antimicrobial is a broad category of the drugs. So it includes antibiotics, antivirals, antifungals, antiparasites, right? Now antibiotics are those antimicrobials which kill bacteria, right? They are also called antibacterials. And then antifungals, those antimicrobials which kill fungi or fungi or fungal microorganisms. And then the antivirals, the antimicrobial drugs which are used to kill viruses, or which are used to treat or prevent the infections from viruses. And then antiparasitics. Antiparasitics are those kind of drugs, antimicrobial drugs, which are used for the prevention or the treatment of infections caused by parasites. So parasites में जिस तरह से अब प्लाज्मोडियम आ जाता है, या वर्म्स है, different kind of worms. So these are all parasites, and the antimicrobial which are used against these kind of parasites, they are called antiparasitic drug. Now in this book we're going to discuss antimicrobials and what kind of antimicrobials: penicillins, cephalosporins, metronidazole, tetracycline, macrolides, fluoroquinolones, sulfamethoxazole and trimethoprim, nitrofurantoin, clindamycin, antiviral, azole antifungals, and mupirocin. So we will discuss one by one these antimicrobials in each lecture. So in antibacterial drugs, there is a further category on the basic mechanism of action of antibacterial drugs. Some antibacterial drugs are bacteriostatic and some are bactericidal. So bacteriostatic, those antibacterial drugs which can just stop the growth of bacteria. ठीक है, वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर रही, सर्टन मैकेनिज्म के थ्रू उनकी डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रिवेंट कर रही है. So those kind of antimicrobial, they are bacteriostatic. Now what are bactericidals? Those antimicrobials which are irreversibly killing bacteria. So one by one we will discuss their mechanism of action in details. Now some of the drugs are bacteriostatic and some of the drugs are bactericidal. So इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है, आप देखें ये बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स हैं, ठीक है. इसको याद रखने के लिए कौन कौन से हैं, तो ये उन्होंने एक निमोनिक है या एक सेंटेंस है जिसको आप मेमोराइज करके इन ड्रग्स के नाम याद रख सकते हैं. एक स्टैटिक अबाउट बैक्टीरियोस्टेटिक. अब देखें, E फॉर एरिथ्रोमाइसिन, C फॉर क्लिंडामाइसिन, एंड S फॉर सल्फोनामाइड, एंड सो ऑन. ये जितने भी रेड लेटर्स हैं वो इन नेम्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप इस तरह से आप माइंड में रख सकते हैं कौन सी बैक्टीरियोस्टैटिक हैं. अब बैक्टीरियोसिडल के लिए
क्या याद रखने के लिए क्या सेंटेंस है, वेरी प्रोफिशिएंट एट कंप्लीट सेल मर्डर. अब रेड अल्फाबेट्स दे आर प्रेजेंटिंग फर्स्ट लेटर ऑफ the name of the drug, like V for vancomycin, and the P for penicillins, and F for fluoroquinolones, and so on. So आपको ओवरऑल एंटी माइक्रोबियल की क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए, एंड देन एंटी बैक्टीरियल की फर्दर जो बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियाइडल क्लासिफिकेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पेनिसिलिन. अगेन दिस लेक्चर इज कमिंग फ्रॉम दिस बुक टॉप 200 ड्रग्स. अब पेनिसिलिन एक्चुअली ये फंगस से डिराइव की जाती हैं और इट्स अ काइंड ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, बट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की पेनिसिलिन्स हैं, ठीक है. बट लेकिन ओरिजिनली ये फंगस से ड्राइव की गई थी और इट्स अ काइंड ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स. सो नाउ द फर्स्ट ड्रग इज पेनिसिलिन, एंड पेनिसिलिन के अंदर अब मैं इस लेक्चर के अंदर सारी की सारी पेनिसिलिन्स डिस्कस नहीं कर रहा. मैं सिर्फ वो पेनिसिलिन्स डिस्कस करूंगा जो कि टॉप 200 में आती हैं, उनके ब्रांड नेम और उनकी हम जेनेरिक नेम देखेंगे, ठीक. सो टॉप 200 के अंदर penicillin V potassium, and the brand name is penicillin VK. Okay, and you can see this brand name for this specific penicillin. And by the way, here I am telling you the brand names which are used in the United States. So if you are doing preparation for NAPLAX or any kind of a registration test for USA, then these brand names really help you. If you memorize these brand name or if you get familiarized with these brand names, it will help you for your exam or registration test. So the penicillin B, and then we have amoxicillin, amoxil. And amoxil is very famous even in Pakistan or India. I think it's a very universal or international brand. And then ampicillin, this is Omnipen, and the brand name is Omnipen. And then amoxicillin and clavulanate, and which is commonly known as Augmentin. Augmentin is actually a combination of two things, penicillins and plus beta lactam inhibitor. So beta lactam inhibitor क्या है, ये clavulanate जो है beta lactam inhibitor है. We will discuss this in next slides. So अब पेनिसिलिन दो तरह से मार्केट में अवेलेबल हैं. एक सिंपल पेनिसिलिन के कोई एक वो ड्रग है जिसमें सिर्फ पेनिसिलिन है, ठीक है, कोई भी XYZ पेनिसिलिन हो सकती है. और दूसरी वो ड्रग होती है जिसमें पेनिसिलिन के साथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर जो है वो ऐड किया होता है ताकि एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए. वो उसको हम देखते हैं किस तरह से साइनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. सो और अगर एम्पिसिलिन सुल्बैक्टम के साथ है तो देन उसका ब्रांड नेम है यूनासिन. एंड देन पाइपरासिलिन is also available with tazobactam. Tazobactam is another kind of beta lactamase inhibitor, or Zeusin. The brand name is Zeusin. So यहाँ पे इन्होंने अगेन आपको बताया किस तरह से आप ये ब्रांड नेम जो है ना उसको मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है. ये जो सेंटेंसेस है उसको आप रीड कर सकते हैं. और यहाँ पे they are telling like this information is about the combination of penicillins and beta lactam inhibitors. बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स जो हैं जैसे क्लेवोलोनेट है, सुल्बैक्टम है, टाजोबैक्टम है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. पाइपिरासिलीन एंड सूडोमोनास दोनों जो है ना पी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए आप ये अपने माइंड में आप याद रखने में आपको ईजी होगा कि दे पाइपिरासिलीन एंड टाजोबैक्टम दे आर मोस्टली यूज्ड अगेंस्ट सूडोमोनास. सो नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिकेशंस. अब इंडिकेशन में जो मेजर डिजीज़ हैं या मेजर डिसऑर्डर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, निमोनिया, स्किन इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस और यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. सो मोस्टली तीन तरह के इन्फेक्शंस के अंदर हम ये ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक. तो ये आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके माइंड में होनी चाहिए कि कहाँ पे हम पेनिसिलिन मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक. अब नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन और प्रिकॉशंस कौन सी आप ले सकते हैं. ऑब्वियसली अगर द पेशेंट इज़ एलर्जिक टू पेनिसिलिन तो आप उसको पेनिसिलिन रिकमेंड नहीं करेंगे, उसकी आप हिस्ट्री चेक करेंगे और देन आप उसको पेनिसिलिन देंगे या नहीं देंगे. अगर वो एलर्जिक है तो उसको आप पेनिसिलिन उसकी काउंसलिंग के दौरान आप उससे पूछ सकते हैं कि उसको एलर्जी तो नहीं है.
ताकि उसको पेनिसिलिन के अलावा कोई और अदर एंटीबायोटिक दी जाए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट. और सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट का आपको कैसे पता चलेगा? अगर उसकी क्रिएटिनिन क्लियरेंस है लेस देन 30 मिल पर मिनट, तो उस केस में भी आप उसको बड़ी कॉशन के साथ या इसकी डोज को मैनेज करोगे ताकि उसकी मज़ीद जो किडनीज हैं वो इफ़ेक्ट ना हो. ठीक है, या डॉक्टर्स के साथ आप एज अ फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ आप मज़ीद कंसल्ट करोगे किस तरह से इसको, या उसको एडवाइस करोगे किस तरह से ये पेंसिलिन की क्या डोज इस बंदे को इस पेशेंट को देनी. देन क्वेश्चन अबाउट द पेशेंट विद द लिवर डिजीज़. अगर किसी बंदे को लिवर डिजीज़ है या कोलेस्टेटिक जॉन्डिस है, उस केस में भी आप कॉशन के साथ इसकी जो डोज़ है वो एडजस्ट करेंगे ताकि उसको मज़ीद लिवर डैमेज या लिवर फेलियर ना हो. ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट द मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस विच यू मस्ट हैव knowledge about. Now the mechanism of action. So mechanism of action, यहाँ पे अगर आप देखें this is the common और general structure of penicillins. And penicillins के अगर आप ये ring देखें, this four cornered ring is called actually beta lactam ring. और इसकी एक्टिविटी सिर्फ इसी रिंग की वजह से है. ठीक है, अब बीटा लैक्टम रिंग ये क्या कर रहा है? बीटा लैक्टम रिंग एक्चुअली ये क्या करता है? ये जाके ब्लॉक करता है पीबीपी. अब व्हाट इज पीबीपी? पीबीपी इज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स. अब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स ये प्रोटीन्स हैं, इनको जाके ये बीटा लैक्टम इसको ब्लॉक करेगा. और इसको ब्लॉक करने से क्या होगा? बिकॉज दीज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन दे आर इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग ऑफ सेल वॉल. ओके, यू कैन सी दिस प्रोटीन, this cute enzyme or protein is building the wall, cell wall. Okay, and if you're gonna inhibit this protein using penicillins, okay, so now you have inhibited this protein. Now there is no cell wall, or maybe the damaged cell wall. Because of damaged cell wall there will be pores in cell wall, और जब pores होंगे तो इसका साइटोप्लाज्म वगैरह बाहर निकल जाएगा, ये सेल वायबल नहीं रहेगा, सेल इसकी डेथ हो जाएगी. So this is a kind of a bactericidal drug. That's why it is called bactericidal. So आप इसका डिटेल में ये साइड पे मैंने दिया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसको आप रीड कर सकते हैं, राइट. एंड देन व्हाट इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स. अब बीटा लैक्टम, अब देखें बीटा लैक्टम फॉर एग्जांपल एक और प्रोटीन होती है बीटा लैक्टमेज. For example, this is an enzyme which we call beta lactamase. This is produced by bacteria. Okay, in bacteria usually produce this beta lactamase enzyme to break this beta lactam ring. Okay, अगर ये beta lactam ring टूट जाएगा तो then तो इसकी एक्टिविटी पेनिसिलिन की वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. This drug is no more active against bacteria. ठीक, तो अब पेनिसिलिन की एफिकेसी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? अब पेनिसिलिन की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके साथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ड्रग दी जाती है. ठीक है, अब बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्या करेगा? वो इस प्रोटीन को इस प्रोटीन को इनहिबिट करेगा, बीटा लैक्टमेज को, ताकि वो बीटा लैक्टमेज इस रिंग को तोड़ ना सके. ठीक है, ये रिंग इंटैक्ट रहेगा, इसकी शेप बरकरार रहेगी, और देन ये पेनिसिलिन फिर आगे इस प्रोटीन पे अटैक कर पाएगी, जिसकी वजह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, या इसकी एफिकेसी ओवरऑल बढ़ जाएगी. इसलिए ये दोनों कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं. ठीक, नाउ द साइड इफेक्ट्स. nausea. Now this is not a nausea, this is nausea. Okay, so nausea, abdominal pain, स्किन रैशेज, सीजर भी हो सकते हैं. अगर आपको इसके खाने से झटके फील हो रहे हैं या सीजर्स फील हो रहे हैं तो इसको आप स्टॉप करें, अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करें, या आपके पेशेंट में ये चीज़ें या आपका पेशेंट ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है तो आपको ये ड्रग चेंज करनी चाहिए. देन थ्रॉट क्लोजेस बिकॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलैक्सिस. समटाइम बहुत सीवियर किस्म का रिएक्शन हो जाता है जिसको हम एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं, तो उस केस में भी ये ड्रग नहीं देनी चाहिए. और इसीलिए एलर्जिक रिएक्शन पहले पूछना ज़रूरी है अगर उस बंदे को इससे कोई एलर्जी तो नहीं है. अदरवाइज लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं विद एनाफाइलैक्सिस. यैकिंग और वॉमिटिंग एंड डायरिया, दीज आर साइड इफ़ेक्ट्स, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स.
इसके अलावा भी हैं बट दीज आर मोस्ट कॉमन। और इसको आप अब ये एक शीट दी हुई है जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने तौर पे। एंड दिस इज़ नास्टी, दिस इज़ अगेन निमोनिक टू मेमोराइज द साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज पेंसिलेट्स। Now the clinical pearls or counseling points, or some more points which you need to consider when you are counseling your patient. So to avoid any kind of a bacterial resistance, so you have to complete your full course of antibiotics. Okay? Then obviously अगर वो suspension है sometimes जो syrup होता है is kind of a suspension, so you must counsel your patient like कि आपने इसको यूज़ करने से पहले इसको शेक करें ताकि जब आप जो भी आप डोज लें वो आपको प्रॉपर डोज मिले। ठीक। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट जो आपको आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ डायरिया। अब ये डायरिया, अब डायरिया की दो सिचुएशन है। एक इरिटेशन की वजह से होता है, जो आप ड्रग लेते हैं समटाइम्स इरिटेशन की वजह से डायरिया होता है, मोस्टली साइड इफेक्ट्स होते हैं ड्रग के। और समटाइम्स सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से, लाइक इन दिस केस क्लोस्ट्रीडियोइडिस डिफिसिली बैक्टीरियम है जो इसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है और डायरिया हो सकता है। सो इस केस में आपको एंटीबायोटिक्स चेंज करनी पड़ती हैं। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेशन विद फूड। सो आप अपनी स्टमक तो अच्छा, फूड के साथ आपने क्यों लेना है पेंसिलिन्स को? टू अवॉइड स्टमक इरिटेशन। तो क्योंकि समटाइम जो आपको नोजिया और वॉमिटिंग या डायरिया होता है वो समटाइम्स इरिटेशन की वजह से, स्टमक में इरिटेशन, अगर आप खाली पेट ये ड्रग लेंगे तो हो सकता है आपको इरिटेशन और इसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग या डायरिया भी हो सकता है। तो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ stomach upset, so you can take this drug with the food. Now this is the full lecture. Whatever things I have discussed in this video, these are coming from these lecture, and you can also use these pages as a reference, and you can download this and you can build your or make your own notes. So thank you so much for your time, and see you in next video.